Best. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee ji. हमारे भीष्माचार्य है. Social नमस्ते सर। preventive medicine, community medicine, which should be the guiding spirit for the present and future. Past, how it was misutilized in the form of pandemic, fear, Bill Gates. We are doctors, bhai. We feel proud to be presenting ourselves as doctors. We have earned and then practiced. We could be blessed by the support of the patients whom we were treating them as well as preventing diseases in their family if one is affected, and basically the other aspect is basically management of the cases also with good nutrition, with good solace. So there were many things. Now let me start with the Bill Gates. He is not even dash. We are bothered about his educational qualification. Now his personal life also, why his wife has left him. Such a gentleman is trying to influence the world, and that to world health in the form of treatment and prevention, and through vaccines which he doesn't understand, which contains chemicals which are harmful, detrimental to the human existence only. Such type of things he has been harboring. And why? And shamelessly he goes to the Epstein, the child racket abuser, and many cases were registered against him, the child abuse, sex abuse, and so many, and how he has abducted and so on and so forth. And what were they doing with small girls? It is a shame. And his wife also left him, and his wife feels sympathy, empathetic to all those girls now who have done become aged adults now, from adolescent age to adults, the trauma they have undergone. And Bill Gates goes to such Epstein activities and he says, I have gone there for collecting funds shamelessly. That is where they have planned for pandemics, all these type of pandemics. And HPV vaccine, which is being given to all young girls, you have to understand, now they have turned India into a laboratory, these fellows. Why? Because they were indulging in such type of sex abuse with small girls. So faced with such things, they wanted to have a safer side medicine for them, prevention for them. That is why they have selected India. And shamelessly, after Modi becomes Prime Minister of India, he is awarded the Padma Vibhushan. It's a shame, Mr. Modi. Now, what is the Modi's connection with Bill Gates and World Health Organization? Why he has got India into this stage? Now it is reflected. And Epstein, though the government is trying to, negate it, but the connection between Bill Gates and Modi, while when he was chief minister, here Y.S. Rajshekar Reddy was chief minister, how these vaccines were experimented. 72nd Joint Parliament Committee recommended punishment. Did they punish Bill Gates and Indian Council of Medical Research and all those associations and Bill Gates Foundation? Instead, after Modi becomes prime minister, he is visiting parliament shamelessly. Now, this child sex racket abused, we are not here. Department of Justice, America released those files. Whether they are this file or that file, we are not bothered. They have released that content, unverified or whatever it is. With such a man, if our Indian government and prime minister is associating, awarding BJP government, India government awarding Padma Vibhushan, is it not a shame? Should not they take it back after all this hangama? And should they not withdraw HPV? So this is the story. And forward, sir, as usual, before I show या what धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी और सभी दर्शकों को नमस्ते। ये जो अभी जो आ रहा है सामने खुलासा आ रहा है एप्स्टीन फाइल्स, हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको प्रभावित करता है ये जानकर कि ऐसे लोग एप्स्टीन जो कि एक प्रकार से परवर्ट कह सकते हैं, बिल गेट्स जो उनके काफ़ी नज़दीकी दोस्त थे और
उनके बारे में पहले भी खुलासा किया है। एक जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट है, टिम सॉब, बिल गेट्स प्रॉब्लम। हम कई बार ये किताब बता चुके हैं। ये 2023 को लिखा है। इसमें पूरे एप्स्टीन के बारे में लिखे हैं, वुमेन के बारे में लिखे हैं, बिल गेट्स के मैरिज के बारे में लिखे हैं, क्यों डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ। एचपीवी वैक्सीन ट्रायल भी जो इंडिया में हुआ, उसके बारे में भी अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने लिखे हैं कि कैसे नाबालिग बच्चों, 13 साल की बच्चियों में, 9 से 13 साल की बच्चियों में एचपीवी वैक्सीन ट्रायल किए थे आंध्र प्रदेश और गुजरात में। गेट्स फाउंडेशन, आईसीएमआर पाथ था गेट्स फाउंडेशन का। और इसमें करीब 26,000 बच्चों को बिगर कंसेंट के, ये हॉस्टल में रहते थे, गरीब बच्चे थे, गरीब बच्चे थे ये, ट्राइबल बच्चे थे, बच्चियां थी, ट्राइबल बच्चियां थी, ना कोई कंसेंट, ना कोई पेरेंट। और 26,000 जो पार्टिसिपेंट्स थे, इनको एचपीवी टीका लगाया गया। उनमें से 6 या 7 लड़कियों का देहांत हो गया ड्यूरिंग द ट्रायल। पहले तो इनकार किया पाथ ने, गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर ने, ये कोइंसिडेंटल है। बाद में काफी पब्लिक आउटक्राई हुआ, मीडिया ने काफी आउटक्राई किया। ये करीब 2009-10 की बात है, 2010 के आसपास, 2010-11। उस टाइम मीडिया काफी एक्टिव होता था। आजकल मीडिया भी कुछ बोलता नहीं है, मेन तब स्ट्रीम यूपीए मीडिया को। गवर्नमेंट था, यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट था तब, तो हर कोई पार्टी इसी में मिली भगत। हाँ, तो वो मीडिया उस टाइम थोड़ा ओपन था। आज अभी तो मीडिया भी कंट्रोल रहता है। तो उस टाइम फिर 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाया गया और उसमें दोषित पाया गया, गेट्स फाउंडेशन को, आईसीएमआर को भी दोषित पाया गया कि ये जो ट्रायल किए थे अनैतिक किए थे, अनएथिकल ट्रायल्स किए थे, और इसमें ग्रॉस इरेगुलरिटीज थे। और बताया कि इसका हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये राज्यसभा लोकसभा में अगस्त 2013 को पेश किया गया, टेबल किया गया। ये 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट कोई भी देख सकता है, गूगल सर्च करेगा उसको मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में है। तो इसके बाद तो क्लियर था। और हम एज अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हम अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर ट्रायल के दौरान ही 26,000 में 7 लड़कियों का डेथ हो जाता, बताइए, यंग गर्ल्स, 9 से 13 साल लड़कियों का डेथ हो जाता है ट्रायल के दौरान, 26,000 में मतलब 7। और सर्वाइकल कैंसर का डेथ रेट क्या है? 1 लाख में 9, 1 लाख में 9 एल्डरली वुमेन को जाके होता है। 50 साल के बाद सर्वाइकल कैंसर अनफॉर्चुनेट है, मानते हैं डेथ नहीं होना चाहिए, पर 1 लाख में 9 डेथ प्रिवेंट करने के लिए आप 9 से 13 साल की बच्चियों में 26,000 में 7 डेथ, ये क्या कॉस्ट बेनिफिट बनता है? ये तो हाँ, सिंपल अरिथमेटिक है, 7वीं क्लास के बच्चे को भी समझना चाहिए। ये डेटा है, इट इज डेटा इज ऑन ये रिकॉर्ड 72nd। मरने वाले की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स है वो तो अब खुदा ऊपर हम वाला बात मेरे। नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्सट्रीम बता रहे हैं। एक्सट्रीम हो गया। बाकी चीज उसी को इनकार कर दिया कि भाई हाँ, ये कोइंसिडेंटल है, तो फिर बाकी को कैसे ये करेंगे? तो अभी तो इसके ऊपर फिर ट्रायल हॉल्ट किया। उसके बाद उसको 2016 को पद्म भूषण मिला, और अभी फिर से एचपीवी वैक्सीन ट्रायल लॉन्च हो गया। एचपीवी वैक्सीन ट्रायल क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया, यूनिवर्सल इसको वैक्सीन रोल आउट कर प्रोग्राम, दिया। इसीलिए इसको हम ये अभी या, इस बीच क्या होता है, इस बीच जो जिस आदमी ने इसको पुश किया, बिल गेट्स ने पुश किया एचपीवी वैक्सीन ट्रायल। बिल गेट्स जितने भी हमारे हेल्थ कमिटीज में एडवाइजर्स है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजर एंड इम्यूनाइजेशन गेट्स फाउंडेशन है, उसका काफी सालों तक, कुछ साल पहले ही शायद उसको अलग किया है। अदरवाइज वो एंटागी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी जो कमेटी है, उसको वो इम्यूनाइजेशन का ये था, एडवाइजर था कि कौन कौन से वैक्सीन नेशनल प्रोग्राम में होना चाहिए। और इस किताब में टिन सॉब ने लिखा भी है कि ये बड़ा अजीब बात है कि एक डेमोक्रेसी में एक कोई फॉरेनर आके गवर्नमेंट को हेल्थ पॉलिसी एडवाइस कर रहा है। ये लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। बोलता है और कोई डेमोक्रेसी में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये अभी तो, उसके बाद अभी जो खुल के आ रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। अभी इसलिए चिंताजनक है कि अभी पता चल रहा है कि ये तो एप्स्टीन के साथ ये काफी शोषण करते थे, 9 से 13 साल के बच्चे को शोषण करते थे, उनको एब्यूज किया। और जो इंसान
का ऐसा जो मेंटल ये है मेकअप, एक प्रकार से साइकोपैथ हम कहेंगे इसको, तो साइकोपैथ है ये। क्या हित में सोच सकता है हमारे इंडिया के 9 से 13 साल के ट्राइबल गर्ल्स में? और उसने तो पब्लिक स्टेटमेंट किया कि इंडिया इज अ लेबोरेटरी। इतना ओपनली वो हमको वो क्या इंडियन जो लड़कियां है वो तो नाबालिग बच्चियों को कीड़े मकोड़े जैसे उसने ये किया। उसका जो दिखाएंगे शायद रेड्डी साहब, उसके जो एक्स वाइफ है मेलिंडा गेट्स, उसने खुद बोला कि मैं उनके साथ हमदर्दी है मेरे को। अब ऐसे लोगों को आप पार्लियामेंट में बुला रहे हैं या पद्म भूषण दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। शर्म की उसने बात है, पूरा इट्स अ शेम, इट्स अ पब्लिक नेशनल शेम। और उसने पूरा कंट्रोल कर रहा है 80-90%। उसका ही इज द बिगेस्ट प्राइवेट कंट्रीब्यूटर टू डब्ल्यूएचओ उसके मुट्ठी में है। और अभी कुछ ऐसे ईमेल आए हैं जिसमें कि एप्स्टीन और गेट्स के बीच में 2013-14 से महामारी आने के पहले से 2019 से प्लानिंग हो रहा था कि लेट अस ब्रिंग अ पैंडेमिक एंड वी विल हैव प्रॉफिट और ये वगैरह वगैरह। तो ये इसको हमको लगता है कि एक और पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाना चाहिए। हमारा जो डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका में तो हो रहे हैं सीनेट हियरिंग वगैरह, हो सकता है यहाँ तक पहुंचे बात, पर हमारा इंडिपेंडेंट ये है तो हमारे को इमीडिएटली द गवर्नमेंट शुड सस्पेंड ऑल कोलैबोरेशन विद द गेट्स फाउंडेशन। ICMR इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग अंडर लेटर ऑफ इंटेंट, रिसर्च कोलैबोरेशन है। बहुत फंड्स हमारे यहाँ 80-90% जो मेडिकल रिसर्च हो रहा है गेट्स फाउंडेशन है। तो वी शुड गेट आउट ऑफ दिस। अगर हमारा डेमोक्रेसी नहीं तो एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा हमारा हेल्थ ऑफ द पीपल। और इसमें इंक्वायरी होना चाहिए। लेट अस क्लियर इट। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कोई पक्ष नहीं लेते, बट लेट अस क्लियर दिस डाउट्स। और इस बीच इसको पॉज करना चाहिए और एक और पार्लियामेंट्री कमेटी इसको डिटेल में जाना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, आज बहुत बुरी दिन है। इट्स अ शेम, इट्स अ नेशनल शेम, एंड हाउ Bill Gates is being allowed to run now after exposure of Epstein files, and shamelessly he is trying to ask for pardon, and he says he has gone the child abusing centers, sex abusing centers run by Epstein, and Bill Gates goes there to collect funds. Now आप सुनिए आप इसकी, फिर भी मैं पूछताछ करूंगा बनर्जी साहब से। पहले थोड़े वीडियोस आपको बताऊंगा। ये चिंताजनक की बात है, उनकी वाइफ ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। I have to acknowledge the elephant in the room at this moment. Your ex-husband, Bill, is named in the newest tranche of Epstein files. And Yep. there are a new alleged details about his past behavior. And I want to give you the opportunity to respond in whatever way you want to. Well, let me say this. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. No girl. I mean, it's beyond heartbreaking, right? I remember being those ages those girls were. I remember my daughters being those ages, right? So for me, it's personally hard whenever those details come up, right? Because brings back memories of some very, very painful times in my marriage, but I have moved on from that. I purposely pushed it away and I moved on. I'm in a really unexpected, beautiful place in my life. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Well, And I am so happy to be away from all the muck that was there. I have to put more words to the muck for context for our listeners. The emails and the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection, and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details.
sad, just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. That's the truth, right? And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. And I hope there's some justice for those now women, right? We see them standing up in front of microphones in DC. What they went through is just unimaginable, I think. Unimaginable, I think. I think now you need to contact before I move. हिंदी में आपको बात करना ही चाहिए सर जी. हिंदी में तो आपको बात करना ही चाहिए. हाँ, ये इनसे पूछा जा रहा है, मिस मेलिंडा गेट्स से, इनकी जो वाइफ थी, एक्स वाइफ, I कि have to आपको अभी acknowledge या बोलिए. आपको जो अभी आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल में जो खुलासे आ रहे हैं कि ये जो नाबालिग बच्चियों के साथ घिनौने हरकत करते थे आपके हस्बैंड, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपना राय दीजिए, आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट हो। तो ये कह रही है कि ये तो बहुत ही सैड है और हमारे को बहुत ट्रॉमेटिक फेज़ था हमारे मैरिड लाइफ़ में, और आई हैव मूव्ड ऑन। और इनको बहुत हमदर्दी है उन लड़कियों के साथ जिनको साथ शोषण हुआ है, उन लड़कियों के साथ जिनको शोषण हुआ है, और हमको तो इनके साथ भी बहुत हमदर्दी है कि इनका पूरा लाइफ एक ऐसे इंसान के साथ बीता जो कि साइकोपैथ ही निकला एक प्रकार से। और एक और बहुत ही सनसनीखेज खबर है जो कि इंटरव्यूअर ने पूछा मेलिंडा गेट्स से कि ये भी रिपोर्ट में है, एक्सचेंजेस है, ईमेल एक्सचेंजेस है, हमने भी देखे हैं, जिसमें कि बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, वो रशियन कोई गर्ल से, क्योंकि वो आइलैंड में काफ़ी कुछ ऐसे घिनौने हरकत होते थे। उसमें फिर वो दवाई लेने की कोशिश कर रहे थे, एप्स्टीन को ये किए कि हमको कुछ एंटीबायोटिक चाहिए, और जो कि शायद हमारे वाइफ को भी ना फैले, तो वो उसको भी हम कुछ मिला के दे सकते हैं कि नहीं एंटीबायोटिक, जो कि उसको पता ना चले कि। तो इस टाइप के सवाल भी किए हैं इस इंटरव्यू में, मेलिंडा गेट्स से किए हैं। हालांकि बिल गेट्स तो इनकार करेगा, तो साइकोपैथ है, पर जो भी है, मतलब इसका कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो जाता अगर ये एसटीडी वाला भी आया हुआ है, ये भी पब्लिक डोमेन में है कि उसको एसटीडी भी हो गया था। तो अभी इसको इतना, मतलब 9 से 13 साल का जो ये पूरा डिक्टेट करता है, अभी मेडिकल पॉलिसी ये कई सालों से डिक्टेट कर रहा है, पर्टिकुलरली वैक्सीन पॉलिसी। इस किताब में दिया, ये एचपीवी वैक्सीन इसी ने लॉन्च किया था इंडिया में, प्रमोट किया था, लॉबी किया था। इसके अलावा तो अभी वैक्सीन जो टेक्स्ट बुक है, बहुत मेडिकल टेक्स्ट बुक है, उसका जो प्रीफेस लिखा है वो बिल गेट्स ने लिखा है। अभी देखिए मेडिकल डॉक्टर्स ने भी ऐसे साइकोपैथ को सरेंडर कर दिया अपना जो साइंटिफिक एक नॉलेज होता है, एक साइंटिफिक डिसीजन होता है। अगर वैक्सीन जो स्टैंडर्ड किताब है वैक्सीन का हमारे मेडिसिन में, उसमें ही अगर फॉरवर्ड कोई साइंटिस्ट को लिखना चाहिए, कोई एक्सपर्ट को लिखना चाहिए, बिल गेट्स उसमें फॉरवर्ड लिख रहा है, मतलब वो काफ़ी पैसे से पब्लिशर को या जो भी है, फिर जर्नल्स को भी कंट्रोल करते हैं, और वो ऐसे रिसर्चर्स को फंडिंग, हैवी फंडिंग करता है जो कि ये सब वैक्सीन को प्रमोट करे। और काफ़ी आजकल मेडिकल जर्नल्स भी कंट्रोल हो रहे हैं, लैंडसेट वगैरह, जो लैंडसेट का जो एडिटर है रिचर्ड हॉटन, उसको भी कोई अवार्ड वगैरह बिल गेट्स ने के इन्फ्लुएंस से उसको लाइफ टाइम अवार्ड मिला, तो वो भी उसके मुट्ठी में है। तो ये इंफॉर्मेशन मीडिया कंट्रोल कर रहा है, मेडिकल जर्नल कंट्रोल कर रहा है। ये गेट्स फाउंडेशन ये पूरा दिया है, इसमें साइंस के ऊपर भी दिया है इसने पूरा एक चैप्टर की, साइंस को कैसे गेट्स फाउंडेशन आजकल कंट्रोल कर रहा है थ्रू रिसर्च ग्रांट्स। ये डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह हमारे इंडिया में तो सभी रिसर्च गेट्स के पीछे गेट्स फाउंडेशन है। तो वो क्या है, जो पे करता है वही डिक्टेट करता है कि रिसर्च किस तरफ जाना चाहिए, और वो जाता किस तरफ है, जो प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता, फार्मा इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता। और बच्चे लोग को अभी वैक्सीन दे रहे हैं, ये एक उसने
जो साइंटिस्ट भी उसी के कब्जे में है। इनका कहना है कि सेक्सुअल कंटैक्ट चालू होने के पहले एचपीवी वैक्सीन लेना चाहिए। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सेक्सुअल कंटैक्ट जो हाई रिस्क है, एचपीवी इन्फेक्शन होता है, एक संक्रामक इन्फेक्शन होता है, वायरस इन्फेक्शन, वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर से होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। तो क्या हमारे बच्चियां 9 से 13 साल के बाद मल्टीपल सेक्स में इंडल्ज करती है? क्या हमारा पहले सोशल रिसर्च करना चाहिए, क्या वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है? क्या 26 साल में जाके 13 साल से मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाता है क्या? वो तो खाली एप्स्टीन के आइलैंड में ही हो सकता है। अगर उसके लिए तैयार कर रहे हो तो हमको नहीं पता करना, पर नॉर्मल लाइफ में ये कॉमन सेंस है, ये सोशल साइंस है कि मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो या इंडियन कंट्री हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ओनली कमर्शियल सेक्स वर्कर्स इंडल्ज इन। मल्टीपल सेक्स मतलब प्रीमैरिटल सेक्स नहीं, प्रीमैरिटल सेक्स नहीं है। शादी के पहले अगर अगर इंटीमेट कांटेक्ट भी होता है, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर से होगा, उससे रिस्क नहीं पड़ता एचपीवी इन्फेक्शन का। एचपीवी इन्फेक्शन का रिस्क कई सर्वेस किए हैं, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में 40 to 50% एचपीवी इन्फेक्शन पाए गए हैं, उसमें हम सोच सकते हैं कि बाकी जो एड्स पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट्स है, उसमें इम्यून डेफिशिएंसी होता है तब एचपीवी। नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन में 1-2% से ज्यादा एचपीवी इन्फेक्शन नहीं पाए गए हैं सर्वेस। अगर करना है तो रिसर्च करके देखो हमारे यहाँ कौन से एज ग्रुप में एचपीवी इन्फेक्शन ज्यादा है। एचपीवी बोल रहे हैं ना, कैंसर होगा तो एचपीवी इन्फेक्शन होगा तभी कैंसर होगा। अगर एचपीवी इन्फेक्शन 1% ही है और 99% को नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप 100% को एचपीवी देने का लॉजिक क्या है? और बस कोई 1% लॉजिक भी क्या है? सबको और एक भी कंफर्म क्या, नहीं है। और एक क्या और है आप एचपीवी का बोलिए सर, बोलिए। एचपीवी का जो नेचुरल है 1% को भी होगा ना, उनमें से जो नेचुरल हिस्ट्री है 99% अपने आप क्लियर हो जाते हैं विदाउट एनी वैक्सीन, विदाउट एनी ये। इसमें बहुत कम मात्रा में ही जाता है। हमारे यहाँ 1 लाख में 9 डेथ होते हैं सर्वाइकल कैंसर से, 13-15 होते हैं सर्वाइकल कैंसर पर 1 लाख वुमेन। और जैसे मैंने कहा कि एचपीवी ट्रायल में 23,000 में 7 मौतें हो गई है। मतलब टेस्टेड होना चाहिए, वैक्सीन भी वेरी सेफ और हमको बेनिफिट उतना मिलना चाहिए और डिजीज इतना प्रेवलेंट होना चाहिए। एचपीवी इन्फेक्शन ऐसे ही कम है, तो इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए। हम किसी को ये हम एक्टिव एक्सर भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, पर हमको रिसर्च और कॉस्ट देखना चाहिए। अगर 1% एचपीवी इन्फेक्शन है, आप 100% कितना अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व टैक्स पेयर्स मनी से, जो कि हमारे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में लगाया जा सकता है। और इसको खाली प्रॉफिट मिलेगा मैन्युफैक्चरर को, हमको रिटर्न में कुछ नहीं एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, जबकि हमारा रिस्क ऑफ एचपीवी इन्फेक्शन बहुत कम है हमारे पॉपुलेशन। तो ये नया एक ये खुलासा हुआ कि महामारी भी उन्होंने एप्स्टीन के साथ प्लान किया है 2017 में। The DOJ just released thousands of pages of Epstein files, and buried inside them may be one of the biggest bombshells no one is talking about. The blueprint for a 20-year financial architecture designed to turn pandemics into a profit center. Otherwise, ये कौन होता है, इसको क्या नॉलेज है, क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि पैंडेमिक से पैसा कमाना चाहता है और he wants to earn money through pandemics, through vaccines, and he wants to experiment HPV vaccines because he's having sex. Not I'm saying, these are the files which are there on your record. His own wife acknowledges when you having multiple this thing, when you get infected, to see that you are out of such infections and you want such girls, so you are promoting this HPV in innocent young girls in India. 7 of them died, and joint parliamentary committee, 12 joint parliamentary committee indicted Bill Gates as well as Indian Council of Medical Research. Instead of initiating criminal action by booking cases, Mr. Modi, after he becomes prime minister, invites this Bill Gates to the temple of democracy, parliament. It's a shame. Every Indian should put his head in shame, and we have to bow to such type of. And then he's been awarded Padma Vibhushan. So this I'm going to ask you on this, and because I just want you to listen to all this, and then you can start answering one after the other. It's a national shame.
Bill Gates and Jeffrey Epstein discussed pandemic simulation 3 years before COVID-19. In March 2017, newly released US Justice Department documents reveal an email from Epstein to Gates about Project BGC3. I am particularly interested in two areas, domestic health and neurotech brain science, Epstein wrote. The proposed deliverables included technical specifications for strained pandemic simulation, digital health data systems, and neurotechnologies for intelligence and defense. This was 2017, 3 years before the world shut down. Gates had warned about pandemics at a 2015 TED Talk. Epstein had access to billions in funding, connections to government and tech elites, and now documented interest in modeling global disease outbreaks. Conspiracy theories don't write themselves. Sometimes the documents do. So these are some things which we are going to show you, and these are all. And here is also records show. Records show Epstein forwarded plans for WHO-linked pandemic preparedness talks in 2015. A 2015 email shows Jeffrey Epstein circulating a draft agenda for a Geneva meeting titled Preparing for Pandemics, with explicit plans to involve the World Health Organization and the Red Cross. In the correspondence, Epstein discusses how to pull this off and references co-branding efforts, underscoring his involvement in elite networks focused on global health and crisis planning years before the COVID-19 pandemic. And these are all the evidences on your screen. And Bill Gates denied allegations in the Epstein files that he cheated on his ex-wife Melinda. He said, "I was foolish to spend time with Jeffrey Epstein. I regret every minute I spent with him. I never went to the island. I never met any woman." Gates claims innocence amid Epstein files controversy. Last time also we have shown, and why is he going there? He is going there to collect funds shamelessly. Very shame. And then let us listen to this. Maybe living an existence of dissatisfaction, maybe even a sense of emptiness, a sense of longing, a yearning that doesn't seem to be filled, even though you may try with entertainment, sex, and drugs, though I have nothing against those. They don't fill that yearning. You may be waking up every day wanting what it is that you want. It's those few of you that I'd like to address right now. This sense of longing, this sense of yearning, this sense of not being satisfied is really your loss of freedom. And it is freedom for which you yearn. And you have none in this government. A government of the American people, which started out with the people being free and the government being our servants. It has become the government is free and secret and veiled in darkness. And it's the people that are the servants. You must see the truth of this, your yearning, your longings, your sense of dissatisfaction that cannot be filled with stuff, with cars, with money. No matter how much you have, that sense of dissatisfaction remains. Please, you have woken up to your reality. That is what you are feeling. Wake up a bit more and do something about it. Raise your voice. He is no more. He has died mysteriously. Some few of you. The yearning, the Maybe. longing, it will impair your right to freedom, and sex and drugs is going on. He is no more. So these are vital evidences as to what was happening in the Epstein island. And this one, I just wanted to show you how this fellow is treating. Country where, oh, there's plenty of things that are difficult there. The health, nutrition, education is improving, and they're stable enough and generating their own government revenue enough that
it's very likely that 20 years from now, people will be dramatically better off. And it's kind of a laboratory to try things that then, once you prove them out in India, you can take to other places. Well, when India is an example of a country where, there's plenty of things that are difficult there. The health, nutrition, education is improving, and they're stable enough and generating their own government revenue enough that it's very likely that 20 years from now, people will be dramatically better off. And it's kind of a laboratory to try things that then, once you prove them out in India, you can take to other places. See, he's saying India is a laboratory. It's a shame. And how? Again, I will play, and I did not play. I think it's enough now. Sir ji, ab shuru ho jaiye. I think we have played. There are many videos. I cannot share them now because I need the experts' comment. How shameless it is. Young girls, drugs. Sir. These are very unfortunate to know that all the world leaders इनके मुट्ठी में थे. जितने भी world leaders है और सबके पास कुछ इनके पास हर किसी को entertain किए हैं और कई वर्ल्ड लीडर्स को एंटरटेन करके उनको ब्लैकमेल किया होगा बाद में. और बाकी जो हमारे जैसे कंट्रीज है, हमारे जो साइंटिस्ट है, उनको फंड्स काफ़ी दिया है रिसर्च के लिए. तो ये बड़ा दुख की बात है कि मेडिकल कम्युनिटी कुड नॉट स्टैंड अप टू दिस परवर्ट्स, एप्स्टीन एंड गेट्स और WHO भी, क्योंकि जो एक्सचेंजेस हैं एप्स्टीन और गेट्स में, जो ईमेल एक्सचेंजेस है, उसमें दोनों मिलके प्लान करते हैं कि WHO को, CDC को, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए अगले पैंडेमिक के लिए. तो उससे क्या है कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए. तो ये 2-3 साल पहले से प्लान कर रहे थे, कोविड पैंडेमिक होने के पहले, कि कैसे हम WHO को अपने मुट्ठी में कर ले, और कर ही लिया एक प्रकार से, क्योंकि WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया और जो एक्चुअल डेटा था उसमें कोई नज़रअंदाज कर दिया. सब सीरियस साइंटिस्ट ने मॉडल्स बनाने चालू कर दिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से, जो एकदम क़यामत आ जाएगा, जबकि ऐसा देखा जाए तो कुछ नहीं आया. वो डिस्टॉर्ट किए हैं फिगर्स, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेशन चेंज कर दिया WHO ने कि किसी का भी पॉजिटिव है, हेल्दी पर्सन भी पॉजिटिव है, उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया, केस काउंट बढ़ा दिया. कोई भी डेथ हो रहा था उसका RT-PCR किया, डेथ कोई दूसरे कॉज से हो रहा है उसके लिए. तो ऐसे करके आप कैसे भी पैंडेमिक ला सकते हो. और ये प्लान एप्स्टीन और गेट्स के एक्सचेंजेस में पता चल रहा है कि ये पहले से प्लान कर रहे थे. तो इसके लिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो एक्सपर्ट्स थे, लाइक सुचारित भाखड़ी और ऐसे कई साइंटिस्ट थे, मेलोन वगैरह, मैकेलो, उन्होंने बताए थे, एग्जैक्ट डेटा बताया था कि ये जो कोविड है, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो उसके लिए पैंडेमिक डिक्लेयर करके लॉकडाउन कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, बिजनेस क्लोजर कर दिया. वो सब एक साइकोलॉजिकल ये था, शॉक देने के लिए था. और फिर वैक्सीन मैंडेट कर दिया, उसमें सबको दे दिया, जो लोग को कोई रिस्क नहीं था, जो लोग रिकवर कर गए. पूरा मतलब साइंस को तोड़ मरोड़ कर दिया. और किसके गाइडेंस में किया? ये एक सेक्स परवर्ट, एप्स्टीन और गेट्स, और WHO को भी मुट्ठी में ले लिया, क्योंकि टेड्रोस इज ऑल्सो नॉट अ डॉक्टर. ये तीनों जो टॉप जो भी थे पैंडेमिक के टाइम, जो टॉप स्ट्रेटेजिस्ट या जनरल्स हम कहेंगे, ये ऑल 3 वर नॉन डॉक्टर्स. तो हम तो शर्म की बात है कि हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, दे डिड नॉट स्टैंड अप टू दिस पीपल बिकॉज ऑफ द फंड्स. इनको आइलैंड ले जाने की भी जरूरत नहीं है, इनको फंड से ही ये खुश हो गए, रिसर्च ग्रांट से खुश हो गए, अपना कैरियर प्रमोट हो गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल लिए हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ ये वगैरह, ऐसे ऐसे सबको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, सबका कैरियर बन गया. तो ये कुछ ऐसे हैं कि मजबूर हो गए, वॉट एवर दे आर सेइंग दे हैव टू गो विथ इट. सो ये एक प्रकार से हाईजैक कर लिया साइंस को, मेडिसिन को हाईजैक कर लिया. ये अनफॉर्चुनेट है. इसमें क्या है कि पीपल हैव लूजिंग ट्रस्ट इन डॉक्टर्स एंड गुड मेडिसिन, एंड डॉक्टर्स डिड नॉट शो द मॉरल करेज. जो डॉक्टर को मॉरल करेज शो करना था, वो मॉरल करेज नहीं शो किया. तो अभी हमको सतर्क रहना चाहिए. हमको उम्मीद है कि इसके जो खुलासे हुए हैं एप्स्टीन फाइल में, इसके बाद WHO को तो डिसबैंड करना चाहिए, क्योंकि WHO एप्स्टीन और बिल गेट्स जैसे लोगों के बातों में, जैसे वो कठपुतली नचाते हैं ना, जो पपेटियर्स,
ये कठपुतली थे, दे वर द पपेट्स। गेट्स भी पपेट था क्योंकि उसको एप्स्टीन कंट्रोल कर रहा था, उसकी शादी भी टूट गई इसी चक्कर में। तो WHO और बाकी लोग पैदे थे, चेस के जो छोटे मोड़े होते हैं ना पैदे, पॉन्स। पपेटियर एप्स्टीन था, पपेट गेट्स था, WHO वगैरह को नचाते थे पॉन्स जैसे, और हम पैदे जैसे हमको धकेलते थे और पूरे भेड़ चाल में पूरा दुनिया को बंद कर दिया। हमें इट्स अ ग्रेट प्लानिंग, ग्रेट अचीवमेंट। ये एक दिन में नहीं होता कि सब 24 आवर्स में आपको रिपोर्ट मिल रहे इतने केसेस हो गए, इतने डेथ्स हो गए एक ही डिजीज का। बाकी कितने डिजीजेस है जो कि डेली 10 टाइम्स ज्यादा डेथ्स होते हैं कोविड से। कोविड के दौरान भी वो नहीं आ रहे थे, बाकी सब अस्पताल बंद कर दिए, मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। इतना बड़ा महामारी तो नहीं था, इसको पूरा नैरेटिव पहले से ही बनाया था। फिर इवेंट 201 किया था, उसमें पूरा गवर्नमेंट्स को ये किया था, मॉक ड्रिल किया था, जिसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। और अभी चिंता वाली बात है कि पिछले महीने फिर से किया है, दिसंबर में पूरा एक और मॉक ड्रिल किया है पैसिफिक रीजन में, वेस्ट पैसिफिक रीजन में। WHO ने क्रिस्टल सिमुलेशन, पैंडेमिक क्रिस्टल, जिसमें 31 कंट्रीज को किया है कि अगले पैंडेमिक के लिए फिर से तैयारी किया जाए। अब तो तो ये खत्म हो गया है, अब एप्सिन के बाद में ये सब खत्म। अब एप्सिन के बाद में उम्मीद करते हैं कि ये सब खत्म हो जाए और WHO जल्दी से डिसबैंड हो जाए और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो। या हर कंट्री काबिल है, हमारे इंडिया सक्षम है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है। वी डोंट रिक्वायर एनी So सपोर्ट what should फ्रॉम दिस India do पब्लिक। now? What sort of punishment should be given to Bill Gates, Indian Council of Medical Research, and Public Health Foundation of India, all those who are involved with Bill Gates and Bill Gates Foundation, and now John Epstein, and why Modi has to award him Padma Vibhushan? Now, don't you think there should be a privilege motion moved on behalf of people of India against the governments, whether it is Congress UPA-led government or this NDA BJP-led NDA government, for compromising and imposing the unscientific will on the people of India in the name of COVID-19 or the day-to-day public health policies, whether it is HPV vaccine, whatever it is. So, don't you think Bill Gates should be arrested, Indian Council of Medical Research, and all those Public Health Foundation of India, and all those officials, ministers, and who were instrumental in awarding Padma Vibhushan? In Hindi, 1 minute में sir. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी जो है उसको कौन जिम्मेदार था, और ये नहीं होने से हम आगे भी फिर ऐसे ये होने हैं। और अगर WHO का पैंडेमिक TT आ जाता है तो फिर कोई उसको रोक नहीं सकता है इस टाइप के फिर से। तो हमको पुश करना है, जो भी नागरिक है, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनसे बताए कि ये मुद्दा उठाना चाहिए। और ये हमको चिंता वाली बात है कि आम जनता को कुछ पता ही नहीं है, सब समझ ही नहीं है इतना। आम जनता क्या, मेडिकल प्रोफेशन को भी नहीं समझ रहता है इतना। तो ये सब उम्मीद करते हैं कि ये अगर मीडिया अभी एप्स्टीन फाइल्स को कवरेज दे रहा है, बिल गेट्स के खुलासे हो रहे हैं, तो इसके से ये जितने भी इसके संस्थान हैं और जितने भी इनके फंडिंग है, इमीडिएटली इसको पॉज करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। Joint Parliamentary Committee should come